Hello everyone, myself Binod Pandey, and today we are here to discuss about evaporation. I hope that you all are in good health and good condition. So, let's begin with the topic evaporation. So, evaporation is not only an important topic of physics, chemistry, but it is also important in geography, especially when we are talking about rain, water cycle, and climatology. So, evaporation plays a very significant role in these processes. So, let's continue with some images. So here we are having three images. Okay, so we can see here, ये जो फर्स्ट इमेज इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज एन इमेज ऑफ सॉल्ट पॉन्ड. हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी कलेक्ट सी वाटर. हम समुंदर के पानी को क्या करते हैं, छोटे छोटे कम गहरे गड्ढे में रखते हैं. एंड ड्यू टू एवेपोरेशन हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है. राइट, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, ड्राइंग ऑफ क्लोथ. कपड़ों को हम सुखाते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, देयर ऑल्सो द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस. सो इन थर्ड इमेज, अब तीसरे इमेज में हम क्या देखते हैं, देर इज वाटर बॉडी एंड सम ट्रांसफॉर्मेशन is taking place, and that transformed substance or material is moving towards the sky, and this transformation is due to evaporation. So let's let's discuss about evaporation, that what are evaporation. Okay, so basically evaporation is what, evaporation is the process in which liquid changes into vapor. Okay, so in boiling the same thing happens in boiling also, but here in case of evaporation, what is an important thing here, when we are talking about evaporation, so liquid changes into vapor, but this change can take place at any temperature. It can take place at any temperature, means without reaching its boiling point, liquid can change into vapor, and this phenomenon or this process is called as evaporation. Okay, now when we are talking about evaporation further, then evaporation is what, evaporation is a surface phenomenon. Why it is surface phenomenon, because it is limited up to the surface only, right? Okay, so this is all about evaporation. Basically, liquid changes into vapor, and this change can take place at any temperature. So this is evaporation. Now, what are the factors that affects the evaporation? Like we are talking about four factors here: surface area, temperature, humidity, and wind speed. Okay. Now, when we are talking about surface area, so when we are talking about surface area, now how rate of evaporation is related to surface area. So here when we are talking about surface area, then what we can conclude, greater is the surface area. Okay, greater is the surface area, greater is the rate of evaporation. Means rate of evaporation increases with an increase in the surface area. It is just similar to clothes. जैसे अब नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग गीले कपड़ों को समेट के रखते हैं. ओके, तो उस गीले कपड़े को सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम उसी गीले कपड़े को हम फैला करके रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो जल्दी ड्राई होता है. ओके, वाई, क्योंकि हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया जो है उस कपड़े का, द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज होगा, और रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो ड्राइंग क्या होगी, ड्राइंग विल बी फास्टर. नाउ द सेकेंड इज रेट ऑफ एवेपोरेशन, हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ने की, तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी बात कंक्लूड करते हैं, दैट rate of evaporation increases with an increase of temperature. Greater is the temperature,
ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब गर्मियों में हम देखते हैं कि जो कपड़े होते हैं, वेट क्लोथ्स ड्राइज फास्टर इन समर्स। वाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में, दैट्स वाई क्लोथ ड्राइज faster in summer just because of temperature. Temperature increases, rate of evaporation increases, rate of evaporation increases, drying of cloth becomes faster. Okay, now rate of evaporation, how it is affected by humidity. Now humidity क्या है? What is humidity? So humidity is defined as the percentage of water present in our surrounding. हमारे सराउंडिंग में जो भी परसेंटेज ऑफ वाटर मॉइस्चर, वाटर इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो जैसे कि हम लोग जब रेनी सीज़न की बात करते हैं, सो इन रेनी सीज़न ह्यूमिडिटी इज़ हाई. So when the nature or the weather is humid, then the rate of evaporation decreases. Means when humidity increases, then rate of evaporation decreases. Okay. Now how it depends on wind. सो विंड, अब जैसे कपड़े की ही हम बात करते हैं, गीले कपड़े, अगर हवा चल रही है और हम उस गीले कपड़े को सुखाते हैं तो क्या होगा? इन दैट केस कपड़े जल्दी सूखेंगे अगेन. सो इफेक्ट, हाउ विंड विल इफेक्ट द रेट ऑफ evaporation. Greater is the wind speed, greater is the rate of evaporation. Okay, so wind speed increases, rate of evaporation again increases. All right, now let's move to the next topic, that is evaporation causes cooling. Now evaporation causes cooling, this is very very important example, और इसका application है, we can say it's an application of evaporation. How we can observe that evaporation causes cooling? तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्पिरिट और पेट्रोल. पेट्रोल के अगर हम लोग फ्यू ड्रॉप्स लेते हैं, इफ़ यू टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेट्रोल एंड वी पुट इट ऑन आर स्किन, 1 से 2 ड्रॉप स्किन हम अपने स्किन पे रखते हैं, पेट्रोल को डालते हैं स्किन पे, तो वहाँ पर और उसको रब करते हैं, और रब नहीं भी करते हैं देन इट्स ओके. तो व्हाट विल हैपन, द पेट्रोल that we are putting on our skin, okay, that petrol will evaporate. But for the evaporation, that petrol requires some small amount of energy, and from where that small amount of energy it will get the small amount of energy from our skin. So by this we can experience or we can sense the cooling effect due to evaporation of petrol. So this way evaporation causes cooling. It's just a very very small and common example that we can discuss here. Now what are the examples of evaporation here? We have already discussed in earlier slides about the examples, but here we are having few examples. Like अगर हम लोग अल्कोहल में अपने फिंगर्स को डिप करते हैं और वो निकालते हैं, देन वी फील लाइक आर फिंगर्स आर चिल्ड. जैसे कि स्पिरिट बिफोर इंजेक्टिंग, जब भी हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर्स, तो क्या करते हैं, फर्स्ट दे क्लीन आर स्किन बाय यूजिंग स्पिरिट. तो स्पिरिट जो यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, स्पिरिट्स हमारे स्किन को क्लीन करते हैं, बट दैट स्पिरिट इज़ मिथाइल अल्कोहल, और वो क्या करता है, दैट गिव्स अस कूलिंग सेंसेशन. वाई कूलिंग सेंसेशन? बिकॉज अब क्या होता है, दैट स्पिरिट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आर स्किन, दैट्स वाई वी हैव अ कूलिंग सेंसेशन. अब स्पेशली इन विलेजेस, अब जब गांव की हम बात करते हैं तो गांव में क्या होता है, स्पेशली इन समर्स, क्या करते हैं, शाम को हम अपने जो गांव के लोग होते हैं वो अपने घर के बाहर पानी को क्या करते हैं, पानी के छींटे मारते हैं. वाई दे डू सो? बिकॉज अब जो पानी के छींटे वो मार रहे हैं, उससे क्या होगा, दैट वाटर विल एब्जॉर्ब हीट. ओके, ग्राउंड से जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड आफ्टर बाय एब्जॉर्बिंग हीट इट विल इवेपोरेट. और हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर क्या होगा, वाटर विल इवेपोरेट.
तो जब हीट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, देन व्हाट विल हैपन, देन द टेम्परेचर विल ऑटोमेटिकली लोअर डाउन. अगेन दिस विल लीड्स इन द कूलिंग, बट इतनी इतनी कूलिंग नहीं होगी कि हमें ठंड लगने लगे, बट द टेम्परेचर विल डेफिनेटली रिड्यूस. हम बात करते हैं कॉटन क्लोथ्स की. वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? वाई? बिकॉज अब कॉटन क्लोथ्स में क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स आर हैविंग स्मॉल पोर्स, एंड ड्यू टू दैट स्मॉल पोर्स इवेपोरेशन कैन ईजिली टेक. अब स्वेट में क्या होता है, स्वेट कंटेन्स वाटर, तो दीज कॉटन क्लोथ्स आर हैविंग वेरी स्मॉल पोर्स. अब कॉटन क्लोथ्स में क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ विच जो स्वेट हो रहा है, स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, द स्वेट विच इज़ कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी, दैट विल ईजिली इवेपोरेट. दैट्स वाई कॉटन क्लोथ्स आर प्रिफर्ड इन समर्स. Now, the next example is it is common observation that we are able to sip hot tea. ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल हम लोगों ने बचपन में बहुत किया है ये, कि गर्म दूध को या फिर गर्म चाय को पीना होता है तो आप क्या करते हैं, गर्म चाय अगर आपके पास और आपको जल्दी से ख़त्म करना है, देन व्हाट वी यूज़ टू डू, हम सॉसर में क्या करते हैं, सॉसर में कप से ट्रांसफ़र करते हैं, कप से चाय को, जो कप प्लेट का होता है उस प्लेट में हम लोग चाय को पलट लेते हैं. और जैसे हम कप से चाय को प्लेट में पलटते हैं, देन व्हाट हैपन्स, देन दिस सरफेस एरिया इंक्रीजेस. और जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो चाय जो है वो जल्दी ठंडी होगी, या दूध जो है वो जल्दी ठंडा होगा, और हम उसे जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर पाएंगे, ड्रिंक कर पाएंगे. नाउ हम मिट्टी के घड़े यानी क्ले पॉट की बात करते हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया कि गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए घड़े में रखते हैं, मटके में रख देते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, अगेन इन दिस केस ड्यू टू एवेपोरेशन हम घड़े को ढक देते हैं, और घड़े के अंदर क्या होता है, जो भी हीट होता है, ठीक है, हीट जो होता है उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब करता है, एंड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर. और वेपर में तो चेंज होता है, बट वो वेपर अब बाहर कैसे आते हैं, दीज क्ले पॉट हैव very very small pores, and these vapor comes out by or from these pores, and after coming out the temperature inside the clay pot reduces, which results in the cooling of water. इसको हम लोग कभी और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटिंग दिस विद द लेटेंट हीट. So these are some examples of evaporation. That's all. Thank you. Have a good day.